Assalamu alaikum, namaskar and welcome to everyone to my channel Down the Codes. Welcome guys to my channel Down the Code, and today we are here with one more very interesting topic about composition. So without wasting our time, let's get started and we'll explore a different composition style which is available. So the composition styles are very different from one another, and it is a widely divided into different part and different styles. So I will give you the one of the best composition style which I choose in my photography, where I shoot portrait, fashion, street and fine art and product photography. There are many more examples for to understand once you're starting about the photography. So आपको उस कंपोजिशन स्टाइल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है when you started photography. So there are many composition style which comes under the composition style, but some of them are very basic to understand. From this you will understand the visual aesthetic of the image and you will manage the different element within your frame. So I feel the composition is the second most important thing after a lighting in photography. So there have a very psychological impact when you shoot, when you choose a different composition style one another. So it's very important when you started photography. So आपके लिए बहुत ज़्यादा valuable content है when you starting photography. आप अगर अभी जस्ट शुरुआत कर रहे हैं photography के लिए, तो आपको नहीं पता कि how are डिफरेंट कंपोजिशन जो अवेलेबल है वो किस तरह इम्पैक्ट करते हैं आपके विजुअल अंडरस्टैंडिंग पे. तो आपको जब अपनी फोटोग्राफी को बहुत ज़्यादा एनहांस करना है, तब आपको इस कंपोजिशन स्टाइल के डिफरेंट जॉनर को प्रैक्टिकली डिफरेंट चीज़ों पर आपको ट्राई करना पड़ेगा, आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, टेस्ट एंड ट्राई करना पड़ेगा. तो आपको समझ में आएगा कि आपका जो विजुअल एलिमेंट है वो किस तरह एनहांस हो रहा है. So without wasting our time, let's jump to the list of the composition which I really loved, and there are many more out there, but I am giving you a very short listed which I really want you to understand at the first stage of this composition style. So let's get started. So मैंने जो composition choose किए हैं वो काफ़ी सारे कलेक्शंस में से चूज किए, बट देर आर मोर, बट उसके लिए काफ़ी टाइम चला जाएगा. सो मैं सिर्फ कुछ शॉर्ट लिस्टेड आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ. एवरी फोटोग्राफर इन द वर्ल्ड. सो द बेस्ट कंपोजिशन स्टाइल जो मेरी लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे है एंड विच इज मोस्ट कॉमन बाय एवरी फोटोग्राफर. एंड अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं फोटोग्राफी को, तो आपको इस कंपोजिशन स्टाइल को यूज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विच इज रूल्स ऑफ थर्ड. तो इसमें होता क्या है कि आपने यूजुअली इसको देखा होगा आपकी स्मार्टफोन की स्क्रीन पे, जहां पर 2 वर्टिकल लाइन एंड 2 हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉस करते एक दूसरे को, और वहां पर वो 4 गोल्डन पॉइंट बनाते हैं. इस गोल्डन पॉइंट पर अगर आप अपने किसी भी गोल्डन पॉइंट पर अगर आप अपने प्लेस को, अपने मेन सब्जेक्ट को प्लेस करते एंड एंटायर फ्रेम को कंपोज करते हैं, दैट फ्रेम इज कॉल्ड रूल्स ऑफ थर्ड. एंड दिस कॉमन कंपोजिशन स्टाइल इज वाइडली यूज्ड बाय एवरीवन. सो लीडिंग लाइन हेल्प द व्यूअर थ्रू द इमेज एंड फोकस अटेंशन ऑन द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द पिक्चर. सो इट विल बी एनीथिंग, वॉल, टेक्सचर, पैटर्न, and it usually called a line as a leading line for this composition. इसमें होता क्या है कि you will compose your picture the way where something drawing the viewer attention toward the point where you wanted the viewer should have to see the subject detail. By this psychological impact, you will choose some of the lines in the picture where viewer draw their attention toward the main subject and explore the entire picture. This composition style, it's called leading line. It will help you a lot. So आपको हमेशा कोशिश ये करनी है कि अपनी इमेजेस में इस तरह किसी लाइन को, पैटर्न को इंट्रोड्यूस करना है जो आपके व्यूअर के अटेंशन को थ्रू द पिक्चर किसी स्पेसिफिक पॉइंट या पर ले जा रहा है जहां पर आपका सब्जेक्ट है. और इफ इट्स नॉट सब्जेक्ट बट आप ये चाहते हो कि आपका व्यूअर जो है वो उस पॉइंट पर देखे, सो आपको उस तरह की लाइन को उसके पर्सपेक्टिव के लिए यूज करना पड़ेगा.
सो ये इस कंपोजिशन स्टाइल को आप बहुत अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं. मैं कुछ एग्जाम्पल मेरी फोटोग्राफी से और कुछ दूसरे एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करूं तो आपको उसका एक बेसिक आइडिया आ जाएगा. सो हाउ यू कैन यूज दिस कंपोजिशन इन योर photography. So the next composition is frame into the frame. So जिस तरह ये नाम से रेफर कर रहा है कि frame into the frame, इसमें होता क्या है कि आप when you pointing your camera towards something, any elements which have the curve or the square pattern from which you can shoot something. सो इसमें क्या हो जाएगा कि आपकी जो एक्चुअल फ्रेम है कैमरे की, इसके अलावा आपने कोई ऐसा विजुअल पॉइंट सेलेक्ट किया है या फ्रेम किया हुआ है जिसमें ऑलरेडी किसी टाइप की किसी फ्रेम को यूज किया है. इट मे बी ट्री, इट मे बी स्क्वायर, इट मे बी ईट और इट मे बी वॉल होल, इट कैन एनीथिंग. सो आपको सिर्फ उस नेचुरल और आर्टिफिशियल फ्रेम को यूज करके अपने सब्जेक्ट को फ्रेम करना है या अपने कंपोजिशन को फ्रेम करना है. सो इस वजह से आपका जो कंपोजिशन है वो इस फ्रेम कंपोजिशन स्टाइल के अंदर आ जाएगा. मीन्स फ्रेम इनटू द फ्रेम. सो दिस कंपोजिशन स्टाइल फिल इन द फ्रेम. It's exactly opposite of how we did in the last composition style कि उसमें आपको किसी फ्रेम को डिस्कवर करना है टू शूट दैट पिक्चर. सो बट इस कंपोजिशन स्टाइल में आपको किसी एक सब्जेक्ट को या किसी भी एक चीज को आपको कंप्लीटली अपने फ्रेम के अंदर ऑक्यूपाई करना है एंड फ्रीज कर देना है कंप्लीटली, ताकि कोई दूसरा एलिमेंट उसके अंदर इन्वॉल्व ना हो. सो दैट इज कॉल्ड फिल इन द फ्रेम. तो आपका जो स्क्वायर है आइदर इट्स अ स्मार्टफोन और डीएसएलआर, इट डजंट मैटर, बट आप जब भी किसी चीज को शूट करो और आप कंप्लीटली अपने जो आपका स्क्वायरिंग स्पेस है कैमरे का अपने पूरा उसको क्लोज कर दिया है. सो दैट्स कॉल्ड फिल इन द फ्रेम. सो दिस कंपोजिशन स्टाइल विच इज नेगेटिव स्पेस. सो आप जब भी किसी सब्जेक्ट को अपनी फ्रेम में कैप्चर कर रहे हैं और फॉर एग्जाम्पल उसको आपने अपने फ्रेम में 30% का रेशो दिया हुआ है एंड द एंटायर फ्रेम इज कम्प्लीटली फ्री, जहां पर किसी भी तरह का कोई एलिमेंट नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कोई भी चीज इन्वॉल्व नहीं है, दैट इज कॉल्ड अ नेगेटिव स्पेस. मीन्स आपने पूरी इस नेगेटिव स्पेस में किसी पॉजिटिव चीज को इन्वॉल्व किया in the picture and the rest of the picture is completely blank with where we don't have any information, जहां पर हमें कुछ भी नहीं है. so that's blank frame, it's called a negative frame. so this composition style is very known in different space, जहां पर आप अपने सब्जेक्ट को डोमिनेंट दिखाना चाहते हो, वेरी इंपॉर्टेंट दिखाना चाहते हो, वहां पर इस कंपोजिशन स्टाइल को यूज किया जाता है. यू नो मेनी अ टाइम यू शूट many pictures and you completely lost your attentions about the pictures कि मैं frame कैसे करूँ. अब to this point you need to really change the point of view, because sometimes अब आप काफी सारी composition को follow कर रहे हैं and you will not get the result. तो वहां पर आपको कभी कभी 2 स्टेप पीछे 2 स्टेप आगे अराउंड द सब्जेक्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लाइटिंग कैसे आ रहा है और बाकी चीजें एलिमेंट में कैसे फिक्स हो रही है. सो ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा आपके पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करना पड़ेगा. यू हैव टू मूव योरसेल्फ और जस्ट आपको अपने पर्सपेक्टिव को भी चेंज करना पड़ेगा. सो अगर आप ये सारी चीजें करते हैं सो जो फ्रेम निकल के आती है दैट कंप्लीटली डिफरेंट. So this composition style is very useful in street photography, portrait photography and fine arts. It is most challenging I can say because there is no rule in this thing. The composition style itself says that कि आपको सिर्फ अपना point of view change करना है ना. You have, if you are in the front, you have to go back. आप अगर आप right में है तो left में जाइए, ऊपर है तो नीचे जाइए. There is a lot of differences in this. तो आपको जब भी आप इस कंपोजिशन स्टाइल को यूज कर रहे हैं तो बी क्यूरियस कि कैसे चेंजेस हो रहे हैं एक एक स्टेप पे. सो यू विल गेट द वेरी स्ट्रॉन्ग कंपोजिशंस. सो फॉर दिस कंपोजिशन यू रियली नीड टू फिगर आउट अबाउट डिफरेंट कलर. सो इस कलर स्केल पर आप जो कलर देख रहे हैं इसके अपोजिट कलर जो है उन कलर्स को आपको इस कंपोजिशन स्टाइल के लिए यूज करना है. मीन्स आपको अपोजिट कलर्स को और डिफरेंट और सिमिलर कलर के अलग अलग वेरिएशंस को भी आप यूज कर सकते हैं, बट आपको सिर्फ इस कंपोजिशन स्टाइल में एक ही चीज को मोस्ट इंपॉर्टेंट रखना है विच इज कलर टू डोमिनेट द एंटायर पिक्चर. सो इट कैन बी एनीथिंग, ब्लैक एंड व्हाइट, रेड एंड येलो, रेड ऑरेंज एंड ब्लू, it can be anything. So you just need to try and figure out like which
lighting composition, and the variations of light will work better in your composition. एक composition style हमने देखा था rules of third, जहां पर 4 डिफरेंट गोल्डन पॉइंट पे अपने सब्जेक्ट को प्लेस करना है, बट दिस कंपोजिशन स्टाइल इज डिफरेंट. रूल्स ऑफ स्पेस, यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट को किसी एक साइड पे फ्रेम के किसी भी लेफ्ट हैंड साइड पर रखते हैं अगर, और उसका जो अटेंशन, जो डायरेक्शन है उस सब्जेक्ट का, उस डायरेक्शन में आप अगर रूम रखते हैं या एम्प्टी स्पेस रखते हैं, सो दैट्स कॉल्ड रूल ऑफ स्पेस. सो ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि आप अपने सब्जेक्ट के अगेंस्ट में फ्रेम को ना स्पेस करें. आपको हमेशा अपने सब्जेक्ट के या अपने सब्जेक्ट के मोमेंट के स्पेस में, उसके डायरेक्शन के स्पेस में आपको अपनी जो फ्रेम है उसको ओपन रखना पड़ेगा, उसको नेगेटिव रखना पड़ेगा, ताकि हम सब्जेक्ट को वेरी इंपॉर्टेंस दे सके उसके पर्सपेक्टिव के लिए. So hope this idea will work for you. So the next is balancing. So the balancing composition is a very creative and I really loved it, and मैंने इस composition को काफी मर्तबा try किया है through my street photography and portrait and different shoots. So इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इस पूरी अपनी complete frame में हम अपने subject को एक तरफ रखते हैं, and opposite to that frame will get one more element which balance the entire picture through this placement. तो हम इस composition style में क्या करते हैं कि अपने subject के जो दूसरा side होता है, either it's left side और right side, but जो empty part होता है उस side पर हम लोग अपनी frame के लिए एक दूसरे element को place करते हैं, जिससे इस पूरी composition में balancing का portion ready हो जाता है. And this composition style, it's very useful in commercials and editorials, or you can say that in a portrait photography. But it's a very challenging thing, क्योंकि आपको किसी ऐसे सब्जेक्ट को प्लेस करना है जो आपके सब्जेक्ट के या आपके मोस्ट फोकस पॉइंट के जस्ट अपोजिट है, और वो उतनी चीजों को अपने पिक्चर्स में प्रॉपरली बैलेंस भी कर पा रहा है. So use the low horizon line and high horizon line in unity of photography composition is widely used in landscape photography. Means जब आप किसी लैंडस्केप पिक्चर को शूट कर रहे हो तो you need to figure out कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछना है कि आपको किस एलिमेंट को सबसे ज्यादा रखना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट द स्काई मोर डोमिनेंट इन योर पिक्चर, then the percentage of the composition will be the 70 and land 30%. And if you want your most grass and the land point will be the more dominant in your picture, that in that situations you need to give a 70% of the frame to the land and 30% to the sky. So there is a widely used, and through some example you will understand like कि आपको इस composition style को कैसे use करना है. Contrast to the interest. So this composition style you can create this in the post, but you can practically use this style when you are exactly shooting. मीन्स आपको इस कंपोजिशन स्टाइल में ट्राई ये करना है कि आपको हाई कॉन्ट्रास्ट वाली चीजों को इन्वॉल्व करना है थ्रू योर फोटोग्राफी कंपोजिशन. जैसे कि आप सनलाइट में किसी पर्सन को शूट कर रहे हो और उसका हार्ड शैडो क्रिएट हो रहा है उसके फेस पे, एंड उसी पर्सन की शैडो उस किसी नियरेस्ट वॉल पर जा रही है, एंड थ्रू दिस हाई कॉन्ट्रास्ट एलिमेंट द विजुअल इज कम्प्लीटली डिफरेंट. सो आप इस कंपोजिशन स्टाइल को डेफिनेटली यूज कर सकते हैं स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए, फैशन फोटोग्राफी के लिए, एंड लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए ऑल्सो. सो दिस कंपोजिशन स्टाइल, इफ you're shooting a portrait and you want the picture will be the standout and the subject will be the standout out of your background, then you need to choose the plain and simple background so the subject will be dominant, it will come into the picture. And opposite to that, if you use the information about the subject where you are shooting and the background will be the visible properly, so in that scenario the viewer also understand how the person and where it exactly. but इसका उल्टा, अगर आपने सब्जेक्ट को ऐसी जगह रखा है जहां पर उसका एनवायरमेंटल दिखाई दे रहा है और जो व्यूअर है उसको ये पता चल रहा है कि द पर्सन इज एग्जैक्टली वर्किंग इन द फैक्ट्री एंड वो काफी सारे एलिमेंट्स के बीच में है, सो दिस सिनेरियो इज ऑल्सो कॉल्ड एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट. सो देयर इज अ वेरी ट्विस्ट प्लेन बैकग्राउंड एंड इंफॉर्मेटिव बैकग्राउंड. सो दिस कंपोजिशन इज अ वेरी, यू नीड टू चूज कि आपको अपनी कंपोजिशन में किस चीज को यूज करना है. दोनों ही होते हैं, बट
you need to decide while you are shooting and what is your perspective of shooting that picture. So after covering all this composition style, now we ended up with this but once you learn all this composition style, you need to break down every concept of getting composed by your different elements and subject. Now you have to start breaking the rules once you learned everything. Yes, you heard me right. It is the concept of go beyond of the composition style, because it's also a built concept. But if you wanted to improve your photography and the visual art, then you have to definitely try stuff out of this composition style, and you will get stunning images once you explore these all different techniques with the open and creative mind. So that's it guys. मैंने आपको जिस कंपोजिशन स्टाइल के बारे में बताया है वो काफ़ी कॉमन है, और इन कंपोजिशन स्टाइल को मैंने प्रैक्टिकली यूज़ किया है थ्रू दिस पिक्चर्स विच यू सॉ इन द वीडियो. एंड इसके अलावा भी काफ़ी सारे कंपोजिशन है जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, बट वीडियो का लेंथ ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए. फॉर दैट थिंग मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया है, बट स्टिल यू कैन फॉर शॉर्टली अंडरस्टैंड कि रूल्स ऑफ ऑड होता है, स्केल एंड पोर्शन होता है. So there are tons of composition style which I use and most of the photographers use in their commercials and the projects. But the basic composition style जो बहुत ज़्यादा और बहुत widely use होता है और बहुत ही common है, मैंने उस सारी composition style को आपके लिए introduce किया है. आपको सिर्फ इस composition style को अपने daily routine में whenever you trying to capture the pictures, whenever you go on the occasion or a family trip, you need to understand before shooting why you're shooting and how you're shooting. This simple question will give you the best examples like आप क्या कर सकते हो उस जगह पर, किस तरह आप अपने सब्जेक्ट को और अपने सीन को, लैंडस्केप को कंपोज कर सकते हो. ये सारे आइडिया आपको विजुअली मिल जाएंगे. तो आप डेफिनेटली इस सारी कंपोजिशन स्टाइल को समझिए और इसके बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लोर करिए, एंड लेट मी नो कि अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानना है, कुछ और समझना है, तो फोटोग्राफी के बारे में आपको अगर आप कोई और क्वेश्चन है आपका, तो डेफिनेटली यू कैन गिव मी इन द कमेंट बॉक्स. आई विल डेफिनेटली गिव द वैल्यूएबल कंटेंट ऑन इट, और उसके ऊपर मैं जरूर रिप्लाई करूंगा. टिल दैट टाइम गाइज, दिस इज द टाइम दैट वी नीड टू गो, एंड स्टे ट्यून. एंड आपको हम लोग नए नए कंटेंट बनाते रहेंगे अबाउट फोटोग्राफी, ट्रैवल एंड फाइन आर्ट्स. सो वी नीड योर लव एंड सपोर्ट थ्रू दिस कंटेंट, एंड आप इसे शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू रियलाइज दैट माई कंटेंट जो मैं बना रहा हूँ वो आपको लोगों को पसंद आ रहा है. सो आई कैन मोर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, और मैं काफी और दूसरी चीजें बना सकूँ. थैंक यू सो मच. टिल दैट टाइम, बाय. खुदा हाफिज. शब बखैर.